नमस्ते दोस्तों, मैं अमित भाटिया आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ टीम न्यूज़ आवर भारत स्पीक्स के साथ और आज हमारे साथ हैं जनरल अता हसनैन सर। वेलकम सर, थैंक यू फॉर Thank you जॉइनिंग very अस टुडे। much. Jai Hind to all our जय हिंद viewers. सर। आज सर जुड़े हैं हमारे साथ एक स्पेशल इंटरेक्शन के लिए। yesterday we had a very good space on Soldier Speaks series with Madhur Sharma ji on his brother Major Mohit Sharma's life, valor and sacrifice. General Hasnain had a very good incident to share, which he wanted to share with us, being involved into uh, that and his meeting with Major Mohit. So it's very apt that, and we are grateful that he's here with us. General Hasnain, welcome, sir. Thank you. And we would like to hear from you about this operation. What kind of operation it is when a person has to go and live with the, with the enemies, and among the enemies being adopting their lifestyle for a week. How challenging it is. देखिए अमित जी, I am not aware of the full details of the operation in which the very, very brave, the very, very outstanding warrior, Major Mohit Sharma of one para, sacrificed his life. I'm not aware of the details because I had by that time just about left the valley. I was then performing the duties of the General Officer Commanding of the Dagger Division at Baramulla. मगर मैं इसको relate करता हूँ with some other operations which Major Mohit Sharma had conducted with me, under me at that time. सबसे पहले तो इनकी यूनिट जो है, I knew this unit very well. ये श्रीलंका में मेरे साथ यूनिट थी. I have operated with them very intimately. A very outstanding unit. और जब 1999 में when at the end of the Kargil operations ये यूनिट दोबारा वापस अवंतीपुर में आई कश्मीर में, and I happened to be the Colonel GS of Victor Force at that particular time. बड़ा challenging वक्त था post Kargil. और Major Mohit Sharma was assigned to us at that time, and he did conducted a couple of operations in the Stral area, Shupian and places like that. I had directed some of these operations, tasked him. He came to me for details. उन details के अंदर मैंने बहुत दफे उनको brief किया, and particularly क्योंकि अब मेरी relationship जरा इनकी unit के साथ बहुत intimate थी, तो और ज़्यादा तफसील के साथ किया. But the reality came back. I realized that Major Mohit Sharma is a special officer. ये स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर हैं, एंड ही इज अ स्पेशल ऑफिसर. एक्यूमेंट बड़ा जबरदस्त था इनका. he had an eye for detail, ground. सवाल पूछते थे. अगर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर सवाल ना पूछे ना, तो फिर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, क्योंकि वो हर तरीके से देखता है, हर कंटिजेंसी से देखता है उसको. यू कांट हैव लॉस ऑफ लाइव्स. 4 आदमी का स्क्वाड है, 8 आदमी गए हैं, 12 आदमी गए हैं ऑपरेशन में, छोटी टीम गई है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सपोर्ट आपका पीछे है बहुत दूर, यू गेट स्टक इन एन एम्बुश और समथिंग दैट, तो यू हैव टू बी फुली कन्वर्सेंट विद कंटिजेंसीज. तो अब 2008 में ये वापस आए मेरे पास. इनकी यूनिट दोबारा आ गई वैली के अंदर, और स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स तो आती रहती हैं. तो जैसे इनको मालूम हुआ कि मैं हूं जीओसी बारामूला डिवीजन, एंड we were in a bad phase, in a very active phase at that time. Infiltration चल रहा था, फेंस तो बन चुकी थी, मगर इन्फिल्ट्रेशन बड़ा एक्टिव हो रहा था उन दोनों में. और जो जानते हैं इस इलाके को वो समझेंगे कि कुपवाड़ा तंगधार की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, इट ऑल ग्रेविटेट्स इनटू 2 फॉरेस्ट एरियाज कॉल्ड रफियाबाद एंड राजवार. राजवार जो है बहुत ज्यादा वो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है. उसके अंदर चले जाओ तो आदमी खो जाता है बिल्कुल. सो he came to me. His team was assigned to Sopore area. He came to me and said, I'm here, sir, and I wish to conduct some major operations in this Rajwar area. I said, absolutely. Rajwar is the area of sub gravitation of terrorists. वहीं होता है, reception वहीं होता है.
ऑपरेशंस जो हमारे फोर्सेस ने किए हैं, आरआर फोर्सेस ने किए हैं, मुझे तो लगता है कुछ कन्वेंशनल तरीके से ज़्यादा किए हैं, कुछ हमें अनकन्वेंशनली इनको करना चाहिए। तो आप बनाइए अपनी प्लान्स। तो ही स्टार्टेड डूइंग हिज रिकॉनेसेंस एंड ही केम टू मी विद मैप्स एंड पूछा मुझसे कि मेरे तजुर्बे में कौन से इलाके थे जहां पर टेररिस्ट प्रेजेंस ज़्यादा था। आई एक्सप्लेन टू हिम द पर्टिकुलर विलेजेस, द ब्लैक विलेजेस एटसेट्रा, जिनके आसपास जो है इनके हाइडआउट्स थे, जो लॉजिस्टिक्स पे डिपेंडेंट थे ऑन दिस विलेजेस। ये आमतौर पे होता है फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर कि जो गांव होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हाइडआउट्स को अंदर। और अगर आप उस गांव और उस हाइडआउट के बीच में रास्ता देख लीजिए या लिंकेज देख लीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि चंद एक दिनों में टेररिस्ट जो है उनका लॉजिस्टिक्स रन आउट हो जाएगा और वो खुद ही क्रॉल करते हुए निकलेंगे अपने हाइडआउट से। ये तरीके हमने अपनाए थे बाद में 2011 में। अभी जो बाद में कोर कमांडर जनरल डिलन साहब थे, टानी डिलन, उनको मैंने टास्क किया था ये, और उन्होंने बड़े तजुर्बे के साथ, बड़े एक्सपीरियंस के साथ इसको परफॉर्म किया था इसको। मगर मेरे मोहित शर्मा वॉज वेरी इंक्विजिटिव। वो रोज आते थे मेरे पास और रोज शाम को बैठते थे मेरे साथ और पूछते थे, सर मुझे और बताइए ये क्या, हाउ एग्जैक्टली हैव दीज ऑपरेशंस बीन कंडक्टेड, व्हाई हैव वी नॉट बीन सो सक्सेसफुल इन राजमार्ग। एंड आई वुड गिव हिम माय असेसमेंट ऑफ इट, and he would come back and say, I think we need to do silent, very very silent operations here, penetrate deep into the jungle। ये जंगल के शायद अंदर नहीं गए हैं हम लोग बहुत ज्यादा, तो we need to do this and conduct these operations by putting ambushes in different areas in these forested areas। and I agree with him, यही तरीका है, आप डीप इंकर्शन करिए मगर बैलेंस मत खोइए। इसी बहुत दफे होता है कि बैलेंस खो जाता है आदमी इन द एंथुजियाज्म। आप 8-10 किलोमीटर फॉरेस्टेड एरिया के अंदर, अगर आप 8-10 किलोमीटर अंदर चले गए फॉरेस्टेड एरिया के अंदर विदाउट सपोर्ट, और आपका एनकाउंटर हो गया और आपकी कैजुअलिटीज हो गई, तो एक तो हेलीकॉप्टर से जंगल से निकालना कैजुअलिटीज को बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेसेस नहीं मिलते हैं वहां पर। और दूसरा, यू गेट आइसोलेटेड। अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आपका एनकाउंटर हो गया तो यू गेट आइसोलेटेड एंड बाय द टाइम यू रीइंफोर्समेंट कम्स, 8-10 किलोमीटर जंगल के अंदर आपको दिन लग जाता है, वन होल डे। मेरा तजुर्बा श्रीलंका का है कि एक दिन में ऑपरेशन करते हुए जंगल में हम 3 किलोमीटर एडवांस करते थे, 3 किलोमीटर, दैट्स ऑल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली बड़े ऑपरेशन जब होते हैं इस तरह के। तो मोहित शर्मा वॉज वेरी वेरी कन्वर्सेंट विद ऑल दिस, एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। He was picking my brain primarily because he knew I was experienced in jungle operations in Sri Lanka, और चाह रहे थे कि मेरा जो हायर लेवल ओरिएंटेशन था उसको थोड़ा उसको उसके ऊपर वो पिक करें और उससे वो तजवीज अपनी बनाए। He made 1 or 2 forays into the jungle in operations, so more out of reconnaissance। गए अंदर, जिसको हम कहते हैं रेकी इनफोर्स, कुछ लोग लेकर गए अंदर, हाइडआउट मिले भी उनको, खाली हाइडआउट मिले थे उन दोनों में, कांटेक्ट नहीं हो पाया, उस वक्त कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब तक मेरा वहां से तबादला हो गया और मैं मऊ आ गया, एंड ही वाज इन टच विद मी। अभी भी उन दोनों में व्हाट्सएप तो था नहीं, बट ही वाज इन टच विद मी अदरवाइज। एंड ही यूज्ड टू कीप टेलिंग मी कि सर मैंने ये किया है और मैं इस एरिया में गया हूँ, उस इलाके को देखा है। आई न्यू दैट ही विल हैव अ कांटेक्ट वन फाइन डे एंड ही विल कम आउट द बेटर। सिर्फ एक चीज थी जो मैं हर वक्त सस्पेक्ट करता था अबाउट मोहित, उनका पैशन बहुत ज्यादा था, वेरी 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 पैशनेट अबाउट, एक तो वेलफेयर ऑफ हिज मेन, ही वाज अ थॉरो प्रोफेशनल, और रिस्क लेने की प्रोपेंसिटी कुछ ज्यादा थी, अपने आप के ऊपर खतरा लाना कुछ उनकी क्वालिटी थी। ही यूज्ड टू ब्रिंग डेंजर ऑन हिमसेल्फ, ही वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ एट ऑल। आई यूज्ड टू एडवाइज हिम ऑन दिस मेनी टाइम्स। तो जिस दिन मुझे खबर मिली कि एक ऐसा एनकाउंटर हुआ है, छोटी टीम थी जो गई थी अंदर, and it was an encounter with 8 terrorists, 8 or 10 terrorists, not more, and 8 to 10 terrorists in Rajmar is a large number जब forested area होता है, और especially in an encounter in which the team leader is always in front himself, तो वही सामने आगे आगे आकर और सब ऑपरेशंस वही कंडक्ट कराता है, कोऑर्डिनेट करता है, लॉन्च करता है। तो इन दैट केस इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ, कुछ ज्यादा थ्रेट हो जाता है उस टीम लीडर, उस स्क्वाड को, उस छोटी टुकड़ी को। तो this is exactly what happened in the first brush of fire
what I learned later in the first brush of fire, I can't say with any authenticity क्योंकि मैं खुद तो था नहीं, मगर मुझे जो खबर मिली बाद में, इसकी हमने एक केस स्टडी भी बनाई थी वहाँ पर आर्मी वॉर कॉलेज में, उसको हम लोगों को प्रेजेंट भी करते थे as to how a special operation of this kind can be conducted, how it can go wrong, what are the lessons we can learn from it, and what is personal bravery, brave personal courage क्या होती है इसके अंदर, because he conducted this operation. After all, losing his life it was not as if he just lost his life. He conducted an operation in which he killed a large number of terrorists. तो मेरी याद तो उनकी इसी की है, his very deep, persistent passion which he had in him. Nothing could dilute it. Personality भी बड़ी अच्छी थी, और he was attractive to his men. The men sort of gravitated to him automatically. And as a senior officer, I would say I would always love to have an officer like him with me anytime in war. लड़ाई में कहीं कोई स्थिति हो, मोहित शर्मा जैसा आदमी अगर मुझे मिल जाए साथ में, I will launch him into any operation and be sure and confident that he will only deliver and come back successful. Indeed, sir. Indeed. It was a story जो उन्होंने बताया था मधुर जी ने, and we had शिव अरूर जी भी आए थे हमारे साथ, कल जुड़े थे, तो बहुत ही एक डिटेल में उन्होंने जिस तरह से बताया था, but even they didn't had exact details of the operations because probably the operational part is very much not out in the And domain. we should not even reveal it, because ये the Exactly. operations जो होते हैं, But they should what remain is under wraps. what is it about? I mean, going into their territory. I mean, what kind of a mindset does it need, sir? So देखिए being स्पेशल फोर्सेस के साथ खास तौर पे देखिए आर्मी में एक चीज होती है, एलिटिज्म, ठीक है। इन्फेंट्री यूनिट्स के अंदर, आरआर यूनिट्स के अंदर घातक प्लेटून बनाते हैं हम। घातक platoons are normally 20, 22 strong platoons with an officer, the fittest men, best shooters, people who got special skills, officer who's very physically fit, इनको साथ में रखकर, and we launch them into different kinds of operations based upon their acumen, based upon the terrain. मैंने बहुत दफे ऐसा किया है कि जैसे असम रेजिमेंट के ट्रूप्स का जो घातक प्लेटून होता है, या बिहार रेजिमेंट के, बहुत दफे मैंने किया है कि बिहार रेजिमेंट के ट्रूप्स में ट्राइबल्स हैं उनके, और जंगलों में खास तौर पे आई हैव सीन कि जंगल्स में ट्राइबल ट्रूप्स आर आउटस्टैंडिंग। मतलब हाउ कैन ए पाकिस्तानी टेररिस्ट फ्रॉम बहावलपुर और मुल्तान compete against a आदिवासी सोल्जर फ्रॉम द बिहार रेजिमेंट ऑपरेटिंग इन राजवार, या अगर आसाम रेजिमेंट का कोई मणिपुर का, कोई नागालैंड का, कोई मेघालय का, भाई सातों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के we saw that in Galwan. Absolutely outstanding men they are, right? तो इस सीनियर कमांडर्स हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। तो मेरा तो ये था कि मैं इन घातक प्लेटून्स को इधर उधर से खींच कर आई टू लॉन्च देम इनटू राजवार, एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ सक्सेस। लेट मी टेल यू, बहुत सक्सेस हमको मिली, नॉट ओनली इन राजवार बट इन मेनी अदर फॉरेस्टेड एरियाज, तोशा मैदान के नीचे एंड प्लेसेस लाइक दैट, जहां पर थोड़ा थिक वो था, जहां पर यू कैन स्मेल आउट। I can tell you, I know of a particular Assam RR unit which had its Ghataks in operations who smelt out. They smelt a camp. उस कैंप की बदबूएं जो थी ना, वो you can't hide them. खाना भी पकता है वहां पर, लोग मॉर्निंग एब्लूशंस में के लिए जाते हैं सब, तो हर टेररिस्ट कैंप के आसपास एक स्ट्रेंज स्मेल होती है, which you and I cannot smell. But a tribal soldier, trained tribal soldier, can smell it from miles away. और वो कहेगा यहाँ कुछ है, इस जगह कुछ है। तो इसी आई एम ओनली ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट कि स्पेशल फोर्सेस जो होती है ना, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस, एंड मोहित शर्मा वाज फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस। तो इट्स नॉट एज इफ अदर यूनिट्स आर नॉट, अदर यूनिट्स आर इक्वली ट्रेन्ड, बट इनकी थोड़ी ज्यादा फोकस होता है इसके ऊपर, ठीक है। एंड दे लव टू they operate independent. Normally other units have there's a greater degree of command and control over them. Contingencies उनकी जो आप करते हैं उसको ज्यादा कंट्रोल में अपने रखते हैं, मगर स्पेशल फोर्सेस के साथ, घातक के साथ, कंबाइंड घातक के साथ आप इसको लॉन्च करते हैं, एंड यू लीव द इनिशिएटिव टू देम
कि जो कंटिजेंसी बनेगी आप खुद केटर कर सकते हैं। स्मॉल टीम के लिए खासतौर पे अगर 4 आदमी की टीम है, 8 आदमी की टीम, आई थिंक दिस वाज एन 8 और 12 मैन टीम जो इसमें मेजर शर्मा गए थे, मोहित शर्मा गए थे। जी सर, तो तो स्मॉल टीम जो खतरा बहुत होता है स्मॉल टीम के लिए, खतरा, बिकॉज यू कैन बी सराउंडेड, यू कैन हैव अ कॉन्टैक्ट सडनली एंड बी सराउंडेड, यू कुड बी सराउंडेड बाय 20-25। वहां पर राजवार में 12 से 20 टेररिस्ट की झुंड ग्रुप्स तो होते हैं, कभी कभी मिले भी हैं वहां पर। मगर अगर शुरू की फ्लरी में बहुत दफे ये होता है कि आप मूव कर रहे हैं जंगल के अंदर, इनिशिएटिव टेररिस्ट के पास है क्योंकि वो छुपा बैठा है और वो आपको साइट कर रहा है, आप उनको साइट नहीं कर रहे हैं, तो पहला एम्बुश जो है उसके अंदर अगर आप स्मॉल टीम है, 8 आदमी की टीम है, यू मे लूज 2 to 3 men इन द फर्स्ट फ्लरी और आपके पास सब 4-5 आदमी रह जाएंगे। अब आपकी लीडरशिप जो है, आपकी लीडरशिप एंड योर कैपेबिलिटी दैट प्लेस अप, and that is where your physical fitness, ability to react under fire, all this comes into being. So with a confident soldier like Major Mohit Sharma, I'm sure his men would have looked up to him. And जब ये पहला वो हुआ था तो इन्होंने probably he took all his counter actions and initially in the initial flurry खुद ही उन्होंने ज्यादातर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा, उसकी उनके आदमियों ने, उनके सोल्जर्स ने भी किया साथ साथ, और दैट इज हाउ दे केम अप ऑन टॉप। बट दे लॉस्ट मैन, देयर इज नो डाउट, दे लॉस्ट मैन इन, मगर इस तरह के ऑपरेशंस में आई सपोज यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कैजुअलिटीज। हो जाता है, गलतियां होती हैं, हो जाता है कभी कभी, मगर सर it does not take away anything from your courage, from your perseverance, your ability to operate, and for the message that you leave behind. The message that you leave behind, um, having sacrificed and having done so much for the cause. इंडीड सर, आई थिंक गलतियों का मार्जिन भी नहीं होता है इस तरह के ऑपरेशन में। आई मीन यू डू नॉट हैव दैट facility that we have in corporate offices, right? Absolutely. There is no leeway. इस प्रोफेशन के अंदर रनर्स अप के लिए कोई स्कोप नहीं है। Absolutely, sir. यहाँ सिर्फ जीत होती है। रनर्स अप का कोई स्कोप ही नहीं है। यू कैनॉट बी अ रनर्स अप हियर। मैं बड़े उसके साथ उदाहरण देता हूँ, जब मैं कभी कभी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लेक्चर लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, आई एम द सेकेंड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, आई एम द सेकेंड बेस्ट सो एंड सो। एक दफे एक एयरपोर्ट ने भी लिखा था, आई एम द सेकेंड बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। मैं कहा ये तो एडवर्टाइज मत करिए कभी, सेकेंड बेस्ट से कुछ नहीं मिलता है। मैं ऐसे प्रोफेशन का हूं जहां अगर मैंने एडवर्टाइज किया कि आई एम सेकेंड बेस्ट, then the enemy will be sitting in your capital. You Indeed, cannot sir. afford to. You cannot afford to be a runners up. और यही राष्ट्र का होता है। आई थिंक यही एक देशभक्ति भी है और यही राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि, और आई मीन अनफॉर्चुनेटली, बट आई मीन इस तरह के जब से आई थिंक धरती बनी है और या ह्यूमन बींग्स बने हैं, और इस तरह की सेक्रीफाइसेस भी होते रहे हैं और होते रहेंगे, but these are the stories that we need to really take inspiration from. And our younger generation must know about them, learn about them. The names of people like Major Mohit Sharma cannot be forgotten. Absolutely. See, अगर हमने ये कहानियां नहीं बताई लोगों को, नहीं रिपीट की, that over a period of time, one generation, two generation, they'll be forgotten. I'm so glad that we are finding time to once again look at Major Shaitan Singh and recall the valor of 13 Kumaon at Razangla, my own unit 4 Gadwal at Jaswantgarh, and places like that. This is what makes a nation. जैसे जैसे एक देश जो है उभरता है, अगर आपने उनकी उस देश के हीरोज को, उस देश के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इनकी देश के लिए, उनको याद नहीं करेंगे, you will never strengthen your resolve as a nation. और आपकी जो ताकत होनी चाहिए as a nation will never emerge to the levels that it should emerge. Indeed, sir. In fact, today is the Navy Day, Yes, the great 4th day, of December. and I mean we are also into this couple of weeks when we had this 1972
war, 1971 war. 71 was So 16 दिसंबर आ 71, रहा है, yes, विजय yes. दिवस आ रहा है. I hope you can conduct a program that day. I would want to join you anytime on 16th of We'll December. definitely do that, sir. We'll definitely do. Thank you so much, sir. Thank you. आपने बहुत I mean, you gave me 15 minutes, but you have I thought have all the exceeded it. time. And All the time. thank you so much. It's a pleasure. Thank you. Thank you very Jai much. Hind. And Jai Hind to all our Vande Mataram. viewers. Jai Hind. और अपने व्यूअर्स से मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा. प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम और भी मीनिंगफुल कंटेंट आपके साथ लाकर शेयर कर सकें. इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए. जय हिंद, नमस्ते.